So continuing the chemical bonding, our next topic is sigma and pi bonds. Up till now we have studied that shells overlap, and for the sake of simplicity, we have made chemical bonding. We have showed chemical bonding by using shells or principal quantum numbers, and और हमने उन्हीं की overlapping दिखा के तो हमने उनके अंदर bonds बनाए. We have made single bond, double bond, or triple bond, but we have made the overlapping of the orbits or shells. But as we know from our knowledge of AS level chemistry, that every shell has subshells, and every shell has subshells. For example, first shell has only one subshell, and that is S, 1s. In second shell, there are two subshells, S and P, 2s and 2p. And in third shell, we have three subshells, 3s, 3p, and 3d, and so on. So when we say that shells or orbits overlap, actually we now know, we should now be able to understand that their subshells overlap, because orbits are a mean path. Actually, the electrons are found in subshells or in orbits. How we define orbits? It is the area on space where the probability of finding an electron is maximum. So basically, electrons are present in the form of or subshells in their shells. So when we say that the outermost shell overlap, actually their outermost subshells overlap. But for the sake of simplicity and keeping things simpler, हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम उसी तरह बनाते हैं जैसे कि ओ लेवल में बनाते थे. आप आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो करते हैं, और आउटर मोस्ट शेल के ही जो है वो ओवरलैपिंग दिखाते हैं. बट in general, today we'll see that in general, what happens, how the bond is formed when S subshell overlaps with S subshell, or S subshell overlaps with a P subshell, or a P subshell with overlaps with a P subshell. D subshell की overlapping भी है, but that will be done in A2, so that is not required right now. So sigma bond in AS level it's not required. We will do that in transition elements. Then we will be doing the A2 course. So, अब हमने इसमें we will be studying about sigma bond and pi bond. So what is a sigma bond? Sigma, the sign of sigma is given by mathematical sign. So sigma is represented by this symbol, which I have just underlined, sigma bond. We call it as a sigma bond. And whenever it has been seen that whenever a single covalent bond is formed, whenever a single covalent bond is formed, that bond is always a sigma bond. How sigma bond is formed? It is formed by head-to-head overlap. It is formed by head-to-head overlaps of atomic orbitals or atomic subshells, and then the covalent bond is formed. So we call it as a head-to-head overlap. In sigma bond, the two orbitals overlap head-to-head. They come in front of each other. They the key, this S is coming forward, and this is moving forward, and another S is also moving, approaching this other one. तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. When they approach, they overlap. S atomic orbital overlaps with another s orbital by head to head. They are going to hit each other head to head. So they come in front of each other, and their fronts they bump into each other. So we call it as a head to head overlap. So in this form, these atomic orbitals change into a molecular orbital. You see, molecular orbitals. And what is the shape of this molecular orbital when two s orbitals overlap? So you can see the diagram. This diagram shows that the two s orbitals have a head-to-head overlap. This is a sigma bond, and sigma bond के अंदर दोनों s सबशेल जो ऑर्बिटल जो हैं वो अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहे हैं. So we need to learn to draw this. ये जो तस्वीर आपके राइट हैंड साइड पे बनी हुई है, this shows a sigma bond. ये आपका sigma bond बना हुआ है.
ये सिग्मा बॉन्ड बन गया. Sigma bond is formed when two s orbitals overlap. For example, in hydrogen, we know that the electronic configuration of hydrogen is 1s1. So what happens is that when we say that hydrogen के orbits overlap करते हैं, actually उसका s subshell overlap करता है. और S से जब भी ओवरलैप करेगा, it will be a sigma bond, and sigma bonds are quite strong bonds because इसके अंदर जो है जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होता है. स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर ओवरलैप. और एक और वजह भी है, इफ यू सी द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हिच इज by light pink in color is surrounding the two dots. What are these two dots? These two dots are atomic nuclei. ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस दूसरे एटम का न्यूक्लियस है. ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं, they are nuclei, and electron cloud of this S subshell is spherical. So these nuclei are surrounded by their electron cloud. जब वो molecular orbital बनता है तो उस वक्त भी ये न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर ही रहते हैं. So the nuclei remains within the electron cloud of their molecular orbital. तो ये nuclei जो हैं ये embedded हैं. Nuclei are embedded. Nuclei जो हैं they are nuclei are embedded. So इसलिए due to this they have a strong force of attraction between the electron cloud and the nucleus. So whenever a single bond is formed, it is always a sigma bond. अब सिग्मा बॉन्ड बनने की एक ऑप्शन तो ये थी कि आपने S to S ओवरलैप किया. S to S ओवरलैप करें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. इसके बाद other options are also there in which sigma bond can be formed. This is the option number 1. You can say this is 1. Now the second option is that a sigma bond can be formed by head-to-head overlap of. Second option is there that an S subshell can overlap to a P subshell. जब भी S किसी भी P से मिलेगा, आपको पता है P is of 3 types, Px, Py और Pz. किसी के साथ भी अगर मिलेगा, any of Px और Py और Pz, किसी के साथ भी जब S to S overlap होगी, S to P overlap होगी, तो you will get a sigma bond. And how this sigma bond is formed now, you will see that whenever a P orbital approaches an S orbital, there will always be a head-to-head overlap. S orbital P orbital के साथ आकर जब फ्यूज करेगा तो ये वाला जो है हिस्सा ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और आपके पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ हाफ टॉफी शेप का बनेगा. आप टॉफी का रैपर देखते हैं तो टॉफी इज इनसाइड एंड रैपर इज ट्विस्टेड ऑन 2 साइड्स. तो उसको हम हाफ टॉफी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक साइड से टॉफी का ट्विस्ट नजर आ रहा है साइड पर, दूसरी साइड पर नहीं है. So, but you see, this is a sigma bond. पहचान क्या है सिग्मा बॉन्ड की? सिग्मा बॉन्ड की पहचान क्या है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं, तो न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट विद इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अभी भी देखें वैसे ही है जैसे S के अंदर था, दोनों S ओवरलैप कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है. लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है. एक साइड पे छोटी सी लोब भी है, that is the other lobe. You know, P orbital has a dumbbell shape, so it has two sides of the lobes. तो उसके अंदर एक साइड जो है ओवरलैप नहीं हुई हुई है और एक ओवरलैप हो गई हुई है. बट यू स्टिल न्यूक्लियाई आर स्टिल प्रेजेंट विद इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो यहाँ भी न्यूक्लियाई जो है वो एम्बेडेड है और न्यूक्लियाई के एम्बेडेड होने से embedded in the electron cloud, this shows that this is a sigma bond. Nuclei अभी भी embedded है. So we call it as a half toffee shape. So एक साइड से P दूसरी साइड से S आके जब ओवरलैप करता है तो P की एक लोब और S आपस में सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. और ऐसी एग्जांपल जो है वो C और H में होती है. C के अंदर जो है वो p ऑर्बिटल्स होते हैं. C has p ऑर्बिटल
whereas hydrogen has s orbital. तो जब भी s और p ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो बन सकता है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, देखें, क्योंकि न्यूक्लिया आर एम्बेडेड इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ ग्रेटर ओवरलैप, एंड देयरफॉर दिस इज अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड अभी आपने देखा है ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। Next type of sigma bond that can be formed is when it's the third type. It can be formed when a px orbital जो है that will overlap to a px orbital. Whenever a px overlaps a px, so you know x axis के ऊपर होता है px, दोनों जब px वाले orbitals होते हैं ये जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं सेम एक्सिस के ऊपर ऑन एक्स एक्सिस, दे अप्रोच हेड टू हेड। तो ये वाला जो है ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। दूसरा वाला जो है वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल बम्प इनटू ईच अदर, एंड व्हेन दे बम्प, सो पी ऑर्बिटल्स की एक लोब दूसरे पी ऑर्बिटल की दूसरी लोब की एक लोब के साथ ओवरलैप करेगी, and then you will have a sigma bond as shown on the right hand side of the arrow। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ फुल टॉफी शेप, ये पूरी टॉफी की तरह से नजर आ रहा है आपको। इसमें भी आपको दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो एम्बेडेड हैं, ऑल्दो राइट इन द मिडिल नहीं है, बट दे आर स्टिल इनसाइड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड देयरफॉर ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कि कार्बन में पी, कार्बन का पी और दूसरे कार्बन का भी पी एक्स जब भी एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो आपको जो है वो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। दिस इज अ थ्री वेज हाउ इन विच योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच एंड दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। So this is how a sigma bond is formed। एक S का S से भी बन सकता है, S का P से भी बन सकता है, और PX का PX के साथ भी बन सकता है। इसके अलावा we will also study in later classes, in later lessons, कि जब भी कोई we'll also learn that whenever a hybrid orbital, hybrid orbital भी हमने पढ़ना है अभी, hybrid orbital बनते हैं, और when hybrid orbitals जो हैं they form a bond hybrid to hybrid or to hybrid to any other orbital, they overlap by a sigma bond, they also form sigma bond। hybrid orbitals जो हैं ये भी sigma bond बनाते हैं। hybrid orbitals also form sigma bond। what are hybrid orbitals, अभी थोड़ी देर बाद in maybe in the next lesson we will be able to understand it। तो ये hybrid orbitals क्या है, ये we will learn about that, but we have just now seen that how a sigma bond is formed, and this bond is strong bond। There is another way of orbitals of overlap of orbitals, and that is called pi bond। तो pi bond को आप मैथ्स में you see the symbol, we call this as a pi bond। तो ये आपका pi bond होता है, pi bond। ये कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड तो हेड टू हेड ओवरलैप बनता है, एंड यू हैव सीन हाउ these are possible, but now you are going to see that there is another possibility of forming a pi bond which can be seen in this diagram। So in this diagram you see this pi bond can be formed when when is a pi bond going to be formed? pi bond जो है वो कैसे फॉर्म होता है? pi bond जो है फॉर्म होता है बाय साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप, एक तो ये साइड से ओवरलैप होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होते, दे आर फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप। दूसरा ये फॉर्म होता है बिटवीन पी वाई टू पी वाई, या फिर ये फॉर्म होता है बिटवीन पी जी टू पी जी। जब भी पी जी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है
तो तब या पी वाई से ओवरलैप करता है तब इट इज गोइंग टू बी अ साइडवेज ओवरलैप। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक आपके पास पी वाई ऑर्बिटल है सपोज। सो ये देखें कि पी वाई का मतलब है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, दूसरा जो है ये भी वाई एक्सिस के ऊपर है, बोथ ऑफ देम आर ऑन द वाई एक्सिस। तो जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, when they will approach each other, so they cannot approach head to head, they will approach each other sideways, as the diagram can be shown। इधर जो दोनों एक दूसरे को साइडवेज ओवरलैप करेंगे, तो साइडवेज ओवरलैप होने से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, these are atomic orbitals, atomic orbitals। जब वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो फिर आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी रिजल्टेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न दिस, दिस इज हाउ द रिजल्टेंट इज फॉर्म। ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट बनता है। ये दरमियान में हम दिखा रहे हैं कि देखें देयर इज अ वेरी लिटिल ओवरलैप, यहाँ देखें बहुत ही थोड़ी सी ओवरलैप है। तो द ऑर्बिटल इज स्लाइटली ओवरलैप, ये लोब जस्ट जो है वो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, and in this way the sideways overlapping is done। तो sideways overlapping जब होती है तो इसमें overlapping region कम होता है, एक वजह। दूसरा ये कि इसका जो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की 2 लोब्स होती हैं इन अ पाई बॉन्ड। जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो आप देख रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज divided into two portions, इसके 2 पोर्शन बन जाते हैं। ऐसा सिग्मा बॉन्ड में नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट इन पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिवाइडेड इनटू 2 portions। and you see nuclei are present outside the nuclei are present outside the electron cloud। उससे क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक। ये आपके सामने एक ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, एंड बोथ द न्यूक्लियाई आर आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये न्यूक्लियाई जो हैं दोनों एटम्स के, दे आर आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इन सच केस, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक, क्योंकि एक तो ओवरलैपिंग लो है, एक तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम है, ओवरलैपिंग जो है वो लेस है। दूसरी वजह ये है कि ये इसके वीक बॉन्ड होने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस बॉन्ड इज वीकर, क्योंकि एक तो ओवरलैपिंग लेस है, दूसरा ये कि इसके अंदर न्यूक्लियाई जो हैं, न्यूक्लियाई आर आउटसाइड, न्यूक्लियाई आउटसाइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो न्यूक्लियाई आर आउटसाइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस वजह से पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अ वीक बॉन्ड। And always know that whenever a double or a triple bond is formed, for example कि आप कहते हैं कि जी C डबल बॉन्ड C, एक होता है C सिंगल बॉन्ड C, एक होता है C डबल बॉन्ड C, ठीक है जी। तो और एक C ट्रिपल बॉन्ड C भी हो सकता है। उस केस में C ट्रिपल बॉन्ड करते हैं जिसको C ट्रिपल बॉन्ड C कैन बी फॉर्म। तो C ट्रिपल बॉन्ड C कैन ऑल्सो बी फॉर्म। तो अब जब भी देखिए कि जब सिग्मा व्हेनेवर अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म, इट शुड बी ऑलवेज अ नोटिस कि जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड में जब हम जाते हैं तो सिग्मा एक ही रहता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं।
तब आपके whenever you see a single bond, the single bond is always a sigma bond. But if you see a double or triple bond, in double bond, one bond is sigma bond, which is formed by head-to-head overlap, and the remaining bonds are pi bonds. Uh, uh, Only one is sigma, and the remaining two are pi bond. Pi bonds are formed by sideways overlap of py py or pz pz, and you see the nuclei are not well gelled inside the electron cloud, and you see the electron cloud of a pi bond has two electron regions, one above the nuclei and the other region is below the nuclei. ये दोनों रीजन मिला के एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये दो रीजन दिखाई दे रहे हैं, पर ये दो रीजन दो पाई बॉन्ड नहीं है, ये दो रीजन मिलकर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये देखना ये है कि जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, व्हेन वी से दैट अ सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, and we say that a double bond has a sigma and pi bond and triple bond has one sigma and two pi bond, and we have also learned that sigma bond is very strong, बहुत strong होता है क्योंकि उसमें head to head overlap होती है, nuclei embedded होते हैं, whereas pi bond is a weak bond. ये जो बॉन्ड है ये भी हमने कहा कि ये वीक बॉन्ड है, जस्ट हियर डाउन ऑन द राइट कॉर्नर। तो क्या फिर जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है, क्या वो मल्टीपल ऑफ सिग्मा बॉन्ड एनर्जीज होंगी? तो ऐसा नहीं है। वी कैन प्रूव दैट बाय गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड that is called bond length and bond energy. So I hope you have understood about sigma and pi bonds. So now I am going towards bond length and bond energy. So let's discuss about bond length and bond energy. This is the topic of bond length and bond energy. तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, पहले तो ये देख लें। देखिए जी, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई of two covalently bonded atoms. So if suppose I have this one atom and then there is another atom which is overlap with this atom, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब ये देखा गया है कि जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें भी ओवरलैपिंग तो सब में होती है, कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग के बगैर तो होता नहीं है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर ये ओवरलैपिंग आ जाती है और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनता है तो फिर ये ओवरलैपिंग बढ़ती है और ये दोनों न्यूक्लियाई दूसरे बॉन्ड की वजह से या मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर, दे ड्रैग द न्यूक्लियाई क्लोजर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब एक बॉन्ड बनता है तो देयर इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बट व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड then there are four electron or two pair of electrons between the nuclei. वो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन दो जो न्यूक्लियाई हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और पुल करते हैं टुवर्ड ईच अदर। इसलिए आप अगर देखेंगे तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.14154 नैनोमीटर है, ठीक है जी। और इफ यू सी हेयर, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है 0.134 है, थोड़ी सी छोटी हो गई है। रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर जो होता है, एक तो लेसर लेसर ओवरलैप होती है, ऑल्दो कि ये ओवरलैप सिंगल सिग्मा बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग होती है, लेसर ओवरलैप होती है और लेसर अट्रैक्शन भी होती है। लेसर ओवरलैप एंड लेसर अट्रैक्शन, ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें बीच में आ जाती हैं। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड में जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते जाएंगे उससे क्या होगा कि ग्रेटर ओवरलैप होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लिया को खींच लेंगे करीब, ग्रेटर ओवरलैप भी होगी और अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग अट्रैक्शन।
तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन लेकिन क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मल्टीपल ऑफ टू में होता है? तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल ऑफ टू में नहीं है। अगर 350 का मल्टीप्लाई बाय टू करें तो वी एक्सपेक्टेड टू बी 700, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है जी, सिग्मा होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई भी होता है। और पाई की बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। इसलिए अगर दोनों सिग्मा होते तो फिर 350 इंटू 350 700 होना चाहिए थी बॉन्ड एनर्जी। लेकिन एक्चुअली एक सिग्मा और एक पाई है, और पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। देयरफॉर सिग्मा की 350 तो डबल बॉन्ड में वैसे ही आ जाएगी, प्लस पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो अगर आप 610 में से 350 माइनस करें तो ये बॉन्ड एनर्जी पाई बॉन्ड की होगी। तो 610 minus 350, this will give you a 260। तो सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 350 थी किलो जूल पर मोल, और पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी निकल रही है दैट इज 260। तो ये 260 निकल रही है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है। अब आपको आई नो दैट यू हैव लर्नड अबाउट बॉन्ड एनर्जी इन नो लेवल्स। इट इज द एनर्जी required to required to break one mole of a bond। वन मोल ऑफ ए बॉन्ड। तो ये एनर्जी जो है ये एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये एनर्जी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड है तो ये एनर्जी कम है। लेकिन डबल बॉन्ड में क्योंकि दो बॉन्ड आ जाते हैं, एक सिग्मा और एक पाई, इसलिए डबल बॉन्ड की टोटल बॉन्ड एनर्जी सिंगल से ज़्यादा होती है। ये ऐसी है जैसे आपने एक ईंट रखी हुई है या एक पीस ऑफ वुड रखा हुआ है और उसकी जगह दो पीसेज ऑफ वुड रख दिए। तो एक पीस ऑफ वुड को तोड़ना आसान है, लेकिन दो पीसेज ऑफ वुड में से एक मोटा है और एक पतला है, तो जाहिर बात है थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर एक मोटा है और एक पतला है तो एक मोटे वाले की जितनी एनर्जी चाहिए थी उसका मल्टीपल ऑफ टू नहीं चाहिए होगी, उसे थोड़ी कम चाहिए होगी। ऐसा ही सिग्मा और पाई बॉन्ड में होता है। तो सिग्मा बॉन्ड is stronger, and this can be seen by bond energy data as well। So I'm stopping here, and you will join again in the next class with the same link। तो हम remaining part पढ़ते हैं।